Yes, ma'am. Did- Okay. Did you understand this example? 2x plus y is equal to 10. So we have to, in place of x, we have to put the value of x as 3. So 2 we will keep as it is. In place of x, we will put 3. So when you are writing inside the bracket, it means that we have to multiply 2 with 3. So 2 3s are 6 plus y as it is equal to 10 also same. So we want to know the value of y now. So y is equal to 10. We will write as it is. This 6 we have to shift to the other side. So it is plus 6. When we shift it to the other side, it becomes minus 6. So 10 minus 6 gives us 4. So value of y is equal to 4. So can anybody read the next question? Enlarge your Which screen. of the following is linear equation in one variable? Yes, which of the following is a linear equation in one variable? So first let me explain to you what is linear equation and then I will tell you what is one variable. Okay. Equation in means what? First, we should have two sides like LHS and RHS, and in between LHS and RHS there should be an equal to sign. Then we call this as equation. For example, here we have 2x plus 3y is equal to 4. Okay, so this part of the equation is LHS and this part of the equation is RHS. Because it is containing the equal to sign, then we call this as equation. Okay, if it is 2x plus 3y minus 4, then is this equation? Can we call this as an equation? Yes, Yes. ma'am. No, we cannot call this as an equation. Why? This is not an equation. Why it is not an equation? Because Ma'am, here is not equal is there. yes, because it is not having equal to sign. If we put equal to sign here, now it is an equation. ओके समझ में आया इक्वेशन का मतलब क्या है Yes. ओके नाउ वी विल लर्न अबाउट लीनियर see any variable like x y z or a b c if I ask you what is the power of x here what you will say 1. what is the power of x it is not having any power means it is understood it is 1 y is having 1 z is having 1 a is having 1 b 1 c 1 okay if any power is there other than 1 we have to mention it ओके वन को छोड़ के दूसरी कौन सी भी पावर अगर है तो उसको हम क्या करते हैं लिखते हैं जब हम x लिखते हैं तो इसकी पावर अंडरस्टूड है कि इसकी पावर 1 है ओके सो इफ एनी वेरिएबल इज हैविंग द पावर 1 इट इज कॉल्ड लीनियर इट इज कॉल्ड लीनियर सो लीनियर मीन्स व्हाट Ma'am, power is linear 1. means what yes if I write an equation 2x plus 3y is equal to 4 see we can see the power of x is 1 here also power of y is 1 if I write another equation as 2x square plus 3y is equal to 4 what is the power of x here 2, ma'am. 2 good the power of x is 2 so any polynomial with a power having 2 it is called quadratic equation okay I will change the power of x to 3 now. So, what is the power that x is having? What is the 3, power of ma'am. x? 3. So, 3. this is called a cubic equation. Okay. So, Yes, ma'am. if the power of x is 1, we call it a linear equation. If the power of x is 2, we call it a quadratic equation. If the power of x is 3, then we call it a cubic equation. Okay. So what is the meaning of linear equation? Did you understand now? What is linear equation? Give an example. Variables are power is 1. Yes, power of variable is 1. Give an example. Give simple example.
x plus 2 3. Anything? X plus 2 is equal to 3. This is a linear equation because x is having power 1. Okay. One variable means in all the C. For example, it should be a linear equation in power in one variable means it should have only x. It will not have any other variable. For example, see 3x plus 4y is equal to 5. Can you tell how many variables are there here? Can you tell me how many variables are there here? X is one variable and y is another variable. Okay. So one is x, one is y. So it is having two variables. Okay. So it is not the linear equation in one variable. It is a linear equation, but in two variables. Linear equation in how many variables? In two variables because it is having x and y separately. Similarly, if I take another example, 3x plus 5 is equal to 10. See, what is the variable that you can see here? What is the variable? X is the variable. Any other variable is there? वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर? सिहान, सिहान पठान, वेरिएबल किसको बोलते हैं सिहान? हसनैन, वेरिएबल का मतलब क्या है? हसनैन, वेरिएबल बोले तो क्या? वेरिएबल किसको बोलते हैं? बोलो, जो भी आता है। x minus 3. गुड, x माइनस 3 नहीं, सिर्फ x को बोलते हैं वेरिएबल। 3 तो नंबर है, 3 नंबर है। x क्या है? वेरिएबल। y क्या है? वेरिएबल। अब मैं 3a plus 4 लिखूं तो वेरिएबल कौन सा है इधर? बोलो, वेरिएबल कौन सा है? जी मैडम। वेरिएबल बोले, यस वेरी गुड। वेरिएबल बोले तो क्या? वेरिएबल बोले तो ये अल्फाबेट्स जो रहते हैं ना, ए, एक्स, वाई, जेड, जो भी रहते हैं इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। समझ में आया? हाँ मैडम। फिर तुमको कभी भी किसी कुछ डाउट है तो पूछ करना, क्यों बैठ रहे हैं? ठीक है, अब एक बार बोलो। तुमको अगर कोई एक बार बोलो मैडम। और एक बार बोलो। ओके ठीक है, देखो और एक बार ध्यान से सुनना। ध्यान से जब सुनते हैं तब अच्छी चीजें समझ में आते हैं, जब आप ध्यान से नहीं सुनते तो समझ में नहीं आता आपको। देखो और एक बार मैं बोलती हूँ, सेम, ठीक है? और एक बार मैं सेम चीजें बोलती हूँ, थोड़ा देख ले। देखो, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। We will learn about variables first. See. Okay. So how many number of lines pass through two distinct points? Two distinct points. देखो अभी एक पॉइंट है और एक पॉइंट है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकते हैं? देखो, दोनों के ऊपर से जाना, कितनी लाइन? अब देखो, मैं सिर्फ यहाँ इसके ऊपर से पास करी तो ये पॉइंट बचा है क्या नहीं? या फिर सिर्फ इसके ऊपर से क्रॉस करी तो ये पॉइंट बचा। हमको क्या होना? ऐसे नहीं होना, हमको कैसे होना? दो पॉइंट रहना, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों के ऊपर से, दोनों के साथ में से मिलकर जाने वाली पॉइंट कितनी होती हैं? देखो,
इसके ऊपर से गए तो कितनी लाइन होती है? वन। कितनी होती है लाइन? 1. एक में So only 1 is the answer. Okay. The things which coincide with one and another. आप समझो कि एक मेरे पास सर्कल है ऐसा, ओके। हाँ, इस सर्कल के ऊपर एक मेरे पास और एक सर्कल है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर ये सर्कल को हटाऊं, ऐसे पेस्ट करूं, इसको लाके इसके ऊपर रखूं, ऐसे कैसे? तो इसको लाके मैं इसके ऊपर ऐसे रखूं तो क्या होगा? इक्वल। इसको लाके मैं इसके ऊपर रखूं, देखो इसके ऊपर रखी मैं भी, तो क्या हुआ? इक्वल। इक्वल। इक्वल हुआ यस क्या? मैम। नहीं हुआ? तो आंसर क्या है इसका? तो इक्वल। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इक्वल। ओके, यस आंसर मैम। इसका है इक्वल। यस ओके ओके, अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 18। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन इज। अब मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसे, तो कितने पॉइंट्स की जरूरत है मुझे? देखो यहां से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, कितने पॉइंट्स? यस, 2 मैडम। एक पॉइंट है, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो कितने पॉइंट्स की जरूरत है? 2 मैडम। 2 पॉइंट्स। ओके, 2, क्योंकि एक लाइन यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ गई तो यहाँ पर एंड होती, तो हमको 2 पॉइंट की जरूरत है। ए राइट एंगल मेजर्स बिटवीन, सी दिस इज द राइट एंगल, इसका मेजर कितना होगा अभी ये राइट एंगल का? 90। यस, कितना होगा? 90। इसका मेजर होगा 90। सी दिस इज एग्जैक्टली दैट इज रिक्वायर्ड। ये एंगल कितना है यहाँ से? 90। ये है 90 डिग्री, तो इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, सो दिस ओके इज मैम। ओके। अभी नेक्स्ट we'll take next one. See here the angle see the angle which exceeds is complementary। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे एंड सप्लीमेंटरी एंगल के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। अब देखो ये क्या है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है क्या नहीं? अब मैं इसको Yes, ma'am. बीच में से डिवाइड करती हूँ यहाँ से। ये देखो ऐसे मैं डिवाइड करी, तो ये कितना हुआ और वो कितना हुआ? ये एंगल कितना हुआ और ये एंगल? ठीक है, एक 45 हो गया और ये भी 45 हो गया, तो दोनों को मिलाने पर कितना मिलता हमको? 90। 90। ओके, जब हम लोग दो एंगल ऐड करते हैं तो अगर उसकी सम 90 हो, जैसे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री और 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री और 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री और 20 प्लस 70, जो भी है, अगर दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर 90 आया, तो हम ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। ओके, क्या बोलते हैं हम इनको? हम इनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। अगर दोनों अब यहाँ द एंगल विच एक्सीड्स इट्स कॉम्प्लीमेंटरी एंगल बाय 30 डिग्री,
तो आगे का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटरी दिया है इधर, एक है 30, तो अगला कितना होगा, 60. यस, बिकॉज 60 में हम लोग 30 ऐड करो तो कितना मिलेगा, 90, तो हमारा आंसर है 60। अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, दो लाइंस हम ऐड करते हैं तो दो एंगल्स इधर बन गए, एक एंगल इधर का है और एक एंगल इधर का, तो अब हम दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो इसका सम कितना होगा, 60 प्लस 180. 120, इनका सम 180. होगा 180। तो जिसका सम 180 होता है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंटरी। Supplementary angle. ओके, सप्लीमेंटरी एंगल। जिसका सम 90 होगा उसको हम क्या बोलते हैं, Complementary angle. कॉम्प्लीमेंटरी। जिसका सम 180 होगा उसको हम क्या बोलते हैं, Supplementary angles. सप्ली। ओके, टू एंगल्स whose sum is equal to 90 degrees is called Complementary angle. complementary angles. Two angles whose sum is equal to 180 degree is called Supplementary angle. supplementary angle। समझ में आया? Yes, ma'am. सिहान एंड कौन है भाई वहां पर, हसनैन एंड हाँ मैडम, अयान समझा। एंड नवीन, समझे? हाँ मैम। Yes, ma'am. सिहान कुछ समझ रहा कि नहीं, बात तो करो भाई, आज फर्स्ट क्लास है आपकी। सिहान 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 आवाज आ रही सिहान? ओके, तो नेक्स्ट आई विल टेक one more question. Okay, this is the last question. You have to attend few more questions from this test. Only 10 questions are remaining now, that I will be taking on Monday. Okay, I think, Okay, ma'am. okay, 10 questions